friends, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we'll proceed with the next topic of the chapter, haloalkanes and haloarenes, that is preparation of haloalkanes from alkenes. In the previous video we studied about the preparation of haloalkanes from alkanes. Now here we will discuss how we can prepare haloalkanes from alkenes. So these monohaloalkanes, they are prepared from alkenes by the action of halogen acids. So like halogen acids हैं, HCl है, HBr है, HI है, ठीक है. So when they are made to react with the alkene, we can have the formation, or we can form, you can say, the haloalkanes. So first of all, the action of these halogen acids on alkenes, if they are symmetrical alkenes, then how the products are formed, later on we'll discuss that. If they are made to add on the unsymmetrical alkene, then how the products can be formed. So उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूं कि symmetrical alkenes क्या होते हैं. So symmetrical alkenes are that alkenes in which the carbons, or you can say double bonded carbons, they have same number of groups. ठीक है, across the double bonded carbon atoms we can say the same number of groups are present. Suppose here if it is CH3 on that side also CH3 or CH3 group should be there. So same type of group should be there if it is CH3 or any other group is there. So whatever group they are present on this carbon, the same groups should be present on that carbon. ठीक है. So these are the symmetrical alkenes. So ऐसी alkenes पे अगर आप मान लीजिए HCl, दोबारा मैं आपको करके बता देती हूँ जनरली रिएक्शन. सो जो आप अगर आप Cl यहाँ पे लगाते हैं, मान लीजिए हमने ये आपने एल्कीन ली CH3 और CH3 और CH3, ठीक है. सो अगर Cl जो है आफ्टर एडिशन, सो एडिशन के बाद मैं प्रोडक्ट्स लिख रही हूँ यहाँ पर. अगर ये मैं एडिशन के बाद आपकी डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो गई, तो Cl जो है दैट इज़ द, इट विल बी हैविंग द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज दिस बॉन्ड इज पोलर. सो आफ्टर दैट की एडिशन हो गई एक कार्बन पे H की और एक कार्बन पे Cl की, तो Cl मान लीजिए इस कार्बन पे है, HCl इस कार्बन पे है. डजेंट मैटर कि आप Cl ने जो है यहाँ आप कह सकते हो कि Cl आपने इस कार्बन पे ऐड किया है या इस कार्बन पे ऐड किया है, क्योंकि अगर आप दोनों ही करके देख लेते हैं सो दैट कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे. सो CH3 किया, CH3 किया, अब आप Cl इस तरफ लगा लें या H इस तरफ लगा लें, बोथ द प्रोडक्ट्स दे आर सेम. ठीक है, दोनों के आयुपैक नेम जो है वो सेम आएंगे. सो इसीलिए whenever they are added, whenever any halogen acid that is added to the symmetrical alkene, तो हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता कि किस कार्बन पे हम Cl को ऐड करें और किस कार्बन पे हम H को ऐड करें. सो आप किसी भी कार्बन पे ऐड करिए Cl को या H को, तो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज formed. ठीक है, only one product will be formed and you can say the same type of product will be formed. Both now they will be having the same IUPAC name. अब मैं आपको इसका ऑर्डर बता दूं पहले कि लाइक HX में अब हमारे पास HCl भी है, HBr भी है और HI भी है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स. It is that HI, HBr and HCl. So HI is very reactive towards the addition. अब now see कि हमें ऐड करना है, तो जितनी जल्दी जो है वो HX की बॉन्ड ब्रेक होगी उतनी ही जल्दी ये नेगेटिव पार्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा और ये पॉजिटिव पार्ट जो है वो फॉर्म होगा. So दोनों जो है वो सेपरेट हो गए, देन ओनली दे कैन अटैक. ठीक है, तभी अटैक होगा. सो अब इसमें ये हमें ये देखना है कि कितनी जल्दी जो है वो HX की बॉन्ड ब्रेक होती है. सो इन सब में अगर हम कंपेयर करें तो HI की जो बॉन्ड है दैट इज़ यू कैन से द वीकेस्ट बॉन्ड. इन तीनों में से सबसे वीक जो है वो HI की बॉन्ड है. सो इट विल बी हैविंग वेरी लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. सो द ऑर्डर विल बी, ठीक है, सो टुवर्ड्स दिस एडिशन दैट इज HI इज
most reactive species towards the addition, you can say, than that of HBr and then HCl. ठीक है. So here also I have written that is justified on the basis of bond dissociation enthalpy. तो इसको थोड़ा इलेबोरेट करें, क्योंकि इसकी बॉन्ड वीक है, तो वीक बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एंथैल्पी लगेगी, कम एनर्जी लगेगी, सो इट विल बी हैविंग वेरी लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. सो दिस वाज द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू द सिमेट्रिकल एल्कीन्स टू प्रिपेयर द हैलोएल्कीन. फाइन. अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी तो हमने सिमेट्रिकल एल्कीन्स में देखी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स दैट टेक्स प्लेस इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. सो अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें कि दिस इज द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम. ठीक है. these two carbon across the double bond, these two are the carbon atoms. now see कि दोनों कार्बन एटम्स के पास सेम नंबर ऑफ, और यू कैन से द सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं. ठीक है. सो सच एल्कीन्स दे आर नोन एज unsymmetrical alkenes, where the across the double bonded carbon atoms the type, or you can say the number of groups, they are different or they are not same. So whenever we have to add halogen acid across the this unsymmetrical alkene, we have to do it according to the Markovnikov's rule, that addition will always take place according to the Markovnikov's rule. So मैं short में बता देती हूँ. Markovnikov's rule ये कहता है, suppose this is the negative part of the species, this is the positive part. Negative part of the species that attaches to that carbon which is having less number of hydrogen atoms. अब इन दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि एडिशन जो है इन दोनों के अक्रॉस होनी है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, इसके पास 1 हाइड्रोजन है. सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच इज हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. सो लाइक दोनों में कंपेयर करें तो इसके पास कम है हाइड्रोजन एटम्स, तो Br जो है, जो नेगेटिव पार्ट है स्पीशीज का, वो इस कार्बन पे अटैक होगा. ठीक है. सो मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा हमारा 2-ब्रोमोप्रोपेन. अब माइनर में अगर देखें तो माइनर ये प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है. दोनों प्रोडक्ट्स बनाए हैं, मेजर माइनर बता दिए आपको, बट एडिशन दैट विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव्स रूल. सो हियर वी कैन से कि ऐसा नहीं है कि वी हैव टू क्रैम दैट इट हैपन्स, यू कैन से इफ वी गो थ्रू द मैकेनिज्म देन इट इज़ ईजिली अंडरस्टूड दैट why the addition of this negative species that goes to that carbon which is having the less number of hydrogen atom. अगर इसका हम शॉर्ट में मैकेनिज्म देखें, इसको भी मैं आपको साथ में बता देती हूँ, सो दैट द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. अब देखिए HBr जो है वो डिसोसिएट हो गया H+ और Br नेगेटिव पार्ट में. ठीक है. और अगर हमने अब कोई एल्कीन, इसमें हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की ही बात करेंगे, तो इसी एल्कीन की इसी की एग्जांपल ले लेते हैं हम. एक H है इसके साथ और एक इसके साथ मान लीजिए CH3 लगा है. ठीक है. सो इसका ये जो पॉजिटिव स्पीशीज़ है और ये नेगेटिव स्पीशीज़ है. सो सबसे पहले जो है वो पॉजिटिव स्पीशीज़ जो H+ जो है दैट विल अप्रोच टूवर्ड्स दिस डबल बॉन्ड. अब क्योंकि कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि लाइक Br पहले अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है, पहले H+ अप्रोच क्यों कर रहा है, क्योंकि हम जैसे मान लीजिए इसमें मैकेनिज्म में ये तो ये बता दिया हमने, ये बता दिया कि दिस विल कम एंड दिस विल अटैक एंड दिस विल हैपन. सो व्हाई नॉट Br अटैक विल प्रेफर्ड कि H+ की बजाय हम पहले Br नेगेटिव का अटैक बता दें. सो एक्चुअली व्हाट हैपन्स, दिस इज़ ए नेगेटिव स्पीशीज़. ठीक है. सो ये नेगेटिव स्पीशीज़ है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सो वी कैन से बिकॉज ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है. सो दिस Br नेगेटिव that do not approach towards
दिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है एक, सो न्यूक्लियोफाइल जो है वो दैट इज़ न्यूक्लियस लविंग, सो इसके अराउंड जो है वो पॉजिटिव इसके दिस पाई इलेक्ट्रॉन की कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये जो है वो स्पीशीज़ इसके ऊपर ईजिली अटैक नहीं करती है। ठीक है, सो अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो H+ है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अगर अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, H+ जो है वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और H+ जो है वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। तो सो दोनों देखते हैं, ये मान लीजिए ये फर्स्ट अटैक है, ये सेकेंड अटैक, तो पहले फर्स्ट वाले का हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले पे अटैक जब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी इसके ऊपर आएगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ है। सो हमारे पास ये जो बनेगा वो ये बनेगा CH3H। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यहाँ से इधर को शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर चार्ज आएगा प्लस, तो ये हमारे पास बन गया CH2 और जो H है वो यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है, फाइन, दिस इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट स्टेप जो है या सेकंड पार्ट हम कह लो कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वाली ऑप्शन देखें कि कैसे अटैक होता है। तो अब देखें कि H+ जो है वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन सो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, सो अब इस तरफ शिफ्ट होगा तो H इसके साथ है, इसके ऊपर H लग गया तो CH2 इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अब ध्यान से देखिए इसमें जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है दैट इज़ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और इसमें जो फॉर्म हुआ है दैट इज़ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। एंड वी नो दैट जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेटाइंस का, इट इज़ टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड एज कम्पेयर टू प्राइमरी। ठीक है, सो दिस इंटरमीडिएट स्पीशीज़ जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है दिस इज़ सेकेंडरी, दिस इज़ प्रेफर्ड। ठीक है, अब ये स्पीशीज़ जो है दैट इज़ प्रेफर्ड बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज़ स्टेबल एज कम्पेयर टू द प्राइमरी। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन दिस इज़ प्रेफर्ड, नाउ Br2 जो है दैट विल कम एंड दैट विल और यू कैन सी दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन। तो ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है दैट विल बी प्रेफर्ड बिकॉज इन दिस स्टेप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज बीइंग फॉर्म। सो अब क्या हो गया हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ Br अटैच हो गया और यहाँ CH2 और HH। सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यही चीज़ जो है वो मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ बताई थी। ठीक है, बट द थिंग्स आर क्लियर इसमें कि अगर हम द सो मैनी क्वेश्चंस विल बी देयर, सो दैट इसीलिए मैंने आपको ये मैकेनिज़्म प्रॉपर समझा दिया है कि क्यों अटैक जो है उस कार्बन पे होगा विच इज़ हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज़ concluded thing कि we have to attach negative part to that species which will be having negative which will be having less number of carbon atoms। ठीक है, so ये क्यों less number of carbon atoms के साथ होगा, क्या होगा और ultimately so what is the reason behind this, so it will be clear to you from this mechanism। ठीक है, so I hope this addition to unsymmetrical alkene that is very much clear to you। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक और है लाइक दिस इज हाइड्राइड शिफ्ट और H- शिफ्ट। नाउ व्हाट हैपन्स, सपोज अगेन वी आर हैविंग दिस अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अब जैसे हमने अभी पढ़ा है मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट जो है वो स्पीशीज़ का दैट विल अटैच to that carbon which will be having less number of hydrogen atoms। तो according to this अगर मैं अभी इसी स्टेप को छोड़ के अगर मैं अपने मार्कोनिकॉफ्स रूल जो भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से प्रोडक्ट लिखती हूँ तो क्या बनता है प्रोडक्ट हमारे पास CH3 ठीक है, देन CH। अब हमें नेगेटिव पार्ट किस कार्बन के साथ अटैच करना है, इसके साथ। ठीक है, Br और ये हमारा बन गया CH3, एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच हो गया। फाइन, दिस शुड बी द प्रोडक्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है। बट ये प्रोडक्ट ना बन के हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज़ डिफरेंट। अब देखें मैकेनिज़्म देखें फिर से जो अभी हमने किया है, तो एक बार H+ यहाँ आएगा,
ठीक है, इसके ऊपर अटैक करता है, तो दिस विल बी द प्रेफर्ड वन, प्रेफर्ड स्टेप, जिसमें हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, सो यही हमने किया अभी पीछे, तो मैंने सिर्फ प्रेफर्ड स्टेप लिखा है अभी, क्योंकि मैंने पीछे आपको पूरी डिटेल समझा दी है। तो ये अपने पास जो बना है दिस इज secondary carbocation. Now what will happen, we know that tertiary is more stable as compared to secondary and then primary. So what will happen, rearrangement will take place. So this H with bonds, H negative जो है H जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में विथ बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन जो है वो सेकेंडरी से टर्शरी में चेंज हो जाएगा विच इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया टर्शरी कार्बोकेटाइन विच इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी वन। तो हमें प्रोसीड उसी हिसाब से करना है। एंड वेन एवर सच केसेज आर देयर, तो वंस यू हैव टू थिंक अबाउट वेदर देर इज़ एनी ऑप्शन फॉर H नेगेटिव शिफ्ट की, उससे हम सेकेंडरी से टर्शरी कार्बोकेटाइन कोई रीअरेंजमेंट ऐसा पॉसिबल है जिससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। ठीक है, सो इसमें पॉसिबिलिटी थी। दिस इज़ नोन एज हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि H जो है वो नेगेटिव फॉर्म में या विद बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज हाइड्राइड शिफ्ट, और वी कैन से H नेगेटिव शिफ्ट। सो दिस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। नाउ अगेन द लास्ट स्टेप, Br नेगेटिव जो है दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट विल बी दिस। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू हाइड्राइड शिफ्ट क्या होती है। सो अभी तक हमने ये मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग, और यू कैन से वी हैव स्टडीड की एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स टू द दिस वन एल्कीन्स से करके, अकॉर्ड फॉलोइंग द मार्कोनिकॉव्स रूल वी कैन प्रिपेयर द हेलो एल्कीन्स। ठीक, नाउ नेक्स्ट है addition of HBr to unsymmetrical alkenes in the presence of peroxide. ठीक है, that takes place according to anti-Markovnikov's rule, or we can say this is also known as peroxide effect और खराश effect. अब unsymmetrical alkenes में addition तो करनी है, but अगर condition है यहाँ पर that is in the presence of peroxide, ठीक है, कोई दिस इज़ बेंजोइल परऑक्साइड। अब परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर ये हमारे पास एडिशन सेम एडिशन होती है, अगर तो यहाँ पर कोई रिएजेंट नहीं है, तो यू हैव टू फॉलो मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, और अगर यहाँ पर परऑक्साइड है, ठीक है, इफ़ इट इज़ रिटन, या आप कह लीजिए कोई ऐसे नेम लिखा है, फॉर्मूला लिखा है बेंजोइल परऑक्साइड, इफ़ इट इज़ रिटन, और यू कैन से फॉर्मूला इट इज़ रिटन, और परऑक्साइड इफेक्ट इज़ रिटन, तो यू हैव टू फॉलो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल देखें, पहले तो सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको सम अप करके देखते हैं। सिंपली नेगेटिव पार्ट ऑफ नाउ दैट कार्बन दैट गोज टू दैट पार्ट विच इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, सो अगर उससे कंपेयर करें मार्कोनिकॉव्स रूल से, तो उससे में नेगेटिव पार्ट जो था वो उस कार्बन के साथ अटैच होता था जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स थे, बट इसमें नेगेटिव पार्ट जो है वो उसके साथ अटैच हो रहा है विच इज़ हैविंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एंड नेक्स्ट पार्ट और H प्लस जो है वो अब पॉजिटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा विच विल बी हैविंग less number of hydrogen atoms. So this will be the product. So according to this rule, जैसे कि मैंने बताया उसी हिसाब से हमने ऐड करके, तो हमारे पास ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो गए। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वी हैव टू क्रैम द स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें प्रॉपर रीज़न है कि क्यों हम इसके साथ अटैच, या नेगेटिव पार्ट जो है वो क्यों इसके साथ ही अटैच हो रहा है जिसके पास जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो पूरी रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल की, ये फॉलो करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। ठीक है, प्रीवियस जो मार्कोनिकॉव्स रूल था वो उसके अकॉर्डिंग था अपना कार्बोकेटाइन मैकेनिज़्म था, बट इसमें जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म फॉलो होता है। अब देखिए इसके स्टेप्स देखते हैं, जैसे कि ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में है, तो परऑक्साइड का क्या रोल है, C6H5 C डबल बॉन्ड, दिस इज़ परऑक्साइड लिंकेज। ये जो है COO, ये C, ये परऑक्साइड लिंकेज होता है। ठीक है, सो C6 this undergoes homolytic fission. So homolytic fission मतलब
अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने शेयर किया था ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, और होमोलिटिक फिशन का जो रिजल्ट होता है दैट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ C6H4 फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल की ये दो बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, लाइक दिस, एक और बन जाएगा, तो एक लेकर के आगे मैं आपको बता देती हूँ। ये फ्री रेडिकल है, और अगर इसको हम ओपन करें C6H5, ये जो है फ्री रेडिकल, इसकी बॉन्ड जो है वो कैसे होगी, सपोज दिस वी हैव, दिस इज अटैच टू दिस वन। ठीक है, रेस्ट जो है दिस इज C6H5, ऐसे होगा। सो अब नेक्स्ट स्टेप जो है ये फ्री रेडिकल है, और अब दिस विल अगेन कोज द होमोलिटिक फिशन ऑफ दिस। अब देखो ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी फॉलोइंग दिस होमोलिटिक फिशन, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे, और इन द फॉर्म ऑफ, अब ये यहाँ से टूट चुका है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा, और पीछे जो हमारे पास बचेगा C6H5 फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इसका एक मॉलिक्यूल लेके मैं आपको बता रही हूँ। C6H5 बचेगा। आई थिंक दिस स्टेप इज क्लियर टू, ये इसका प्रॉपर ओपन करके मैंने बताया है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन, और दिस विल कोज द होमोलिटिक फिशन ऑफ दिस CC बॉन्ड। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड लीविंग बिहाइंड C6H5 free radical. Now this C6H5 free radical जो है that will cause the homolytic fission of HBr. ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल जो है दैट विल कोज द होमोलिटिक फिशन ऑफ दिस बॉन्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आप समझ पा रहे हो इसको। सो ये जो H फ्री रेडिकल है अब C6H5, ठीक है, अब इसके पास आकर के इसको, ये तो हो जाएगा कंप्लीट C6H6 लीविंग बिहाइंड Br फ्री रेडिकल। ठीक है, Br फ्री रेडिकल। अब इसमें जो है, अब दिस Br फ्री रेडिकल विच इज़ अ वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, नाउ इट विल अटैक ऑन द एल्कीन। अब ये एल्कीन पे अटैक करेगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप जो है Br नेगेटिव इस पे अटैक करेगी। अब Br नेगेटिव जो है, अब अगेन वी आर हैविंग बोथ दिस चांसेस कि दिस Br फ्री रेडिकल ये इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो पहले हम Br फ्री रेडिकल का इस कार्बन के ऊपर अटैक देखते हैं। तो अगर फ्री रेडिकल का इसके ऊपर अटैक है तो इसकी भी फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिशन हो जाएगी। तो ये फ्री रेडिकल, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और इधर से Br आ गया। अब देखो पीछे इसने क्या बनाया, CH और फ्री रेडिकल जो है वो इस पे आ गया, देन CH2 और Br जो है वो इसके ऊपर अटैच हो गया। अब सेकंड रूट में देखें कि सेकंड जो ऑप्शन है कि Br जो है वो इस पे भी अटैक कर सकता है। हम दोनों ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है वो फेवरेबल है, तभी हम कोई कंक्लूजन निकालेंगे इसका। तो और फ्री रेडिकल अगेन इसकी भी होमोलिटिक फिशन होगी तो ये इस पे आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा कि ये इसके साथ अटैच हो गया Br और दिस लीविंग बिहाइंड दिस फ्री रेडिकल। अगेन हम इसमें देखें कि ये फ्री रेडिकल जो है दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, एंड वी नो दैट फ्री रेडिकल कार्बन फ्री रेडिकल जो है उसका भी यही ऑर्डर है, टर्शरी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। सो दिस स्टेप इज मोर फेवरेबल स्टेप बिकॉज इसमें जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो सेकेंडरी बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 3 एंड इट मीन्स दिस स्टेप इज फेवर्ड और Br जो है वो प्राइमरी के साथ लग चुका है। नाउ दिस विल अटैक ऑन द अदर स्पीशीज, दिस फ्री रेडिकल इसकी होमोलिटिक फिशन करवाएगा जो H है, अब इसके साथ
अटैच हो जाएगा, लीविंग बिहाइंड अगेन द Br फ्री रेडिकल, जो कि फिर से प्रोसीड करेगा सेम स्टेप को और रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होती रहेगी। ठीक है, सो इसमें देखो CH3, अब इसके साथ H अटैच हो गया, CH2 और Br। ठीक है, अब हमारे पास देखो सेम प्रोडक्ट बन गया जो हमने यहाँ पर बनाया था। ये तो सिंपली मैंने आपको यहाँ पर बोल के और कंक्लूड करके बता दिया दैट नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट स्पीशीज विच इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बट अब इसमें देखो कि क्यों होता है ऐसा कि वो इसके उस कार्बन पे अटैच हो रहा है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, अब लेकिन देखो क्योंकि इसका अगर प्रॉपर मैकेनिज्म देखें दैट फॉलोज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, पूरे मैकेनिज्म से आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इसका अटैक जो है वो उस कार्बन पे हो रहा है और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स है। और यू कैन से व्हाट डू यू मीन बाय द दिस दैट हाउ दिस एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल इज़ फॉलोड, और उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। ये तो हो गया एडिशन इन द दिस वन टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, लाइक पेरोक्साइड इफेक्ट जो है दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू HBr। ठीक है, बट नोट टू HF, HCl एंड HI। ठीक है, जब भी पेरोक्साइड इसमें एडिशन करेंगे दैट इज़ एप्लीकेबल टू HBr ओनली। अब दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेप्स। अभी जो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म बताया उसमें ऑब्वियसली देखो ये स्टेप था जिसमें Br फ्री रेडिकल जो था वो इस पे अटैच हो रहा था, इस पे एल्कीन पे अटैक कर रहा था। और इसमें नेक्स्ट स्टेप था जब ये फ्री रेडिकल अटैक होने के बाद जब Br फ्री रेडिकल ने अपने आप को किसी कार्बन के साथ अटैच कर लिया था। ठीक है, उसके बाद उसने ये क्रिएट किया था कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, ये वाला अल्केन वाला, तो इसकी होमोलिटिक फिशन कराई थी। ये तो मैंने बेसिकली बोल के बता दिया। अब क्या है कि X ले लिया हमने यहाँ पर। नाउ हेयर X कैन बी F फ्री रेडिकल, कैन बी Cl फ्री रेडिकल और कैन बी I फ्री रेडिकल। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि क्यों पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो HBr ही शो करता है। ठीक है, और यू कैन से दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू HBr, नॉट टू HF, HCl और HI। सो ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए मैंने आपको ये स्टेप्स दोबारा जनरली लिख के बताए। तो ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये F जो है इस टाइम X जो है वो F है तो उसका डेल्टा H यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, माइनस में है, इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर Cl फ्री रेडिकल इस पे अटैक करता है तो उसकी भी कौन सी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए Br है, इसको Br कर लेते हैं और इसको I फ्री रेडिकल कर लेते हैं। ठीक है, अगर Br है तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट I फ्री रेडिकल इस पे अटैक हो रहा है कार्बन पे तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कैसा बन रहा है डाटा। अब जब ये एक इस पे अटैच होने के बाद X इस पे अटैच हो रहा है लीविंग बिहाइंड दिस फ्री रेडिकल, तो अब इट विल कॉज द होमोलिटिक फिशन ऑफ HX बॉन्ड। अब इसकी फिशन करवाएगा। अब इसमें भी HX की अगर हमारे पास HF है, HCl है, HBr है और HI है। ठीक है, तो अगर F है तो ये एंडोथर्मिक है, HCl है तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक है, Br है तो दिस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर और I है तो दिस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि यहाँ एक्सो और Br के लिए एक Br ही ऐसी स्पीशीज़ है जिसके लिए दोनों स्टेप्स जो हैं वो एक्सोथर्मिक नेचर के हैं। अदरवाइज़ बाकियों को हम कंपेयर करें तो F और Cl में ये दोनों एक्सो हैं लेकिन ये वाला स्टेप जो है वो एंडो है, और I के केस में ये वाला स्टेप एंडो है तो ये वाला एक्सो है। सो दिस इज़ ओनली Br स्पीशीज़। ठीक है, HBr कह लीजिए आप, कि उसका अटैक जब होता है तो ये दोनों स्टेप्स तो फॉलो होंगे ही होंगे। तो इन दोनों स्टेप्स में जब भी ये अटैक होता है तो HBr ही ऐसी स्पीशीज़ है इन विच बोथ द स्टेप्स दे फॉलो द एक्सोथर्मिक और बोथ द स्टेप्स दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, सो और यू कैन से द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज पॉसिबल इन
HBr following both the steps which are exothermic in nature. ठीक है, अब बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, आप नोट कर सकते हो यहाँ पर. ठीक है, देन फिर इसमें होमोलिसिस ऑफ HI इज़ पॉसिबल बट द अटैक ऑफ I नेगेटिव, जैसे कि अभी मैंने बताया है, दैट डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज द स्टेप इज एंडोथर्मिक. वो मैंने आपको पूरा डाटा से समझा दिया है. सो वी कैन से दैट पेरोक्साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन HBr. सो दिस इज द होल रीज़न कि एंड हाउ द एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल इज़ फॉलोड, व्हाट इज़ इट्स मैकेनिज्म. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट कि ये सिर्फ HBr में ही क्यों ऑब्जर्व होता है, वाई नॉट इन HF, HCl एंड HI. ठीक है, सो दैट्स ऑल विद दिस वीडियो.